Bismillahirrahmanirrahim. This is your chapter number 3, Winds and Cyclones. We know that air is present all around us, but we can't see it. The moving of air is called wind. वो हवा जो चलती है उसको विंड कहते हैं. एंड साइक्लोन मीन्स उर्दू में इसको बोलते हैं तूफ़ान. I told you in the previous chapter that air has space and pressure. That's why this is called air pressure. Wind is moving air. Wind is called the moving air which is blowing at the speed of 5. The gentle breeze moving of about 5 km per hour, and the strongest wind moves of about 200 km per hour. Winds usually blow from one direction at the same time, but sometimes they spin round and round. These are called the cyclones and anticyclones. क्या होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हवा है वो गोल घूमती है, स्पाइरल्स में घूमती है, जिसकी वजह से जो कहा जाता है साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स. द स्पाइनिंग एयर समटाइम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस द case of anticyclones is usually caused when cold air from polar regions meets warmer wet air from the tropics. Okay, now I will give you or explain you the details how the wind is blowing and in which direction they are blowing. Okay, now I am on the page number 13. As you can see, what is cyclone and what are anticyclones? Let's see. In a cyclone, the winds spin round in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. I told you that Earth is divided into imaginary divided into two hemispheres, southern and northern hemisphere. In cyclone, the winds spin round in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere. जो हवाएं हैं वो northern hemisphere में anti-clockwise move करती हैं और clockwise जो है वो southern hemisphere में move करती हैं. Anti-clockwise कहते हैं जैसे कि आपकी घड़ी जो है वो clockwise move करती है. Anti-clockwise मतलब इसके opposite, clockwise के opposite. और clockwise तो आपको पता है जैसे घड़ी आपकी move करती है. Okay, the air pressure on the earth is low. In the cyclone, when the wind is blowing, the pressure of the air is very low, especially in the tropic seasons. Okay, the wind can reach well over 200 kilometer and the result in immense damage. ये जो इसकी जो हवाएं हैं वो चलती हैं 200 किलोमीटर पर आवर में और ये बहुत ज़्यादा तबाही लेकर आती है. Scientists have calculated that even a medium strength cyclone has the power of 500,000 nuclear bombs. Cyclones are smaller than anticyclones. Cyclones जो होते हैं वो छोटे होते हैं एंटी साइक्लोन से, बट द विंड स्पीड आर मच स्ट्रॉन्गर. लेकिन इनकी जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. इन द सेंटर ऑफ द आई द विंड स्पीड आर मच लेस. ओके, आई विल गिव यू व्हाट इज एन आई. टेल यू. This is at the center. This is called an eye. Here the pressure of the air is very low, much less. Cyclones means bad, stormy weather with a lot of rain. Cyclones brings stormy weather and brings lot of rains. Okay, in the Bay of Bengal and the coastal areas around it down to the western coast of India, साहिल समंदर में इंडिया के वेस्टर्न साइड पर जो साइक्लोन्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं इस रीजन को. बांग्लादेश इज़ पर्टिकुलर इफ़ेक्टेड बाय साइक्लोन्स. बांग्लादेश भी मुतासर होता है इन साइक्लोन से विच कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही आती है. ओके, नाउ आई एम ऑन द एंटी साइक्लोन. व्हाट इज़ एंटी साइक्लोन? इन एन एंटी साइक्लोन द विंड्स गो राउंड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी साइक्लोन में जो हवाएं होती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं, जैसे कि आपकी घड़ी कौन से हेमिस्फेयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं आपके साउदर्न हेमिस्फेयर में. दे प्रेसेस डाउन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्रिएटिंग हाई प्रेशर. और ये ज़मीन पे हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं.
साइक्लोन्स में लो प्रेशर क्रिएट करती हैं, जबकि एंटी साइक्लोन्स में दे क्रिएट हाई प्रेशर. You can remember this by thinking of screwing a screw into a piece of wood. As you turn the screw clockwise, it presses more and more on the wood. You can take an example of wood. आप एक लकड़ी की मिसाल ले लें. इसमें अगर आपने पेज को फिक्स करना है, पेज घुमाएंगे तो जिस डायरेक्शन में यू कैन आप उसको टर्न करेंगे वो डायरेक्शन कहलाएगी आपकी क्लॉकवाइज. अगर उसी पेज को आपने खोलेंगे तो वो जो डायरेक्शन होगी वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगी. द हाई प्रेशर ऑफ एन एंटी साइक्लोन यूजली मीन्स फाइन वार्म एंड ड्राई वेदर. जो हवा का प्रेशर है एंटी साइक्लोन में उसका मतलब है कि गर्म मौसम और खुश्क मौसम लेकर आना. द विंड्स आर यूजली फेयरली जेंटल. और इस एंटी साइक्लोन में जो हवाएं चलती हैं वो यूजली जेंटल होती हैं, यानी कि हल्की फुल्की होती हैं. ओके, now I am on the page number 14, Toronto. Toronto means tufan. As you can see in the above diagram, a violent tornado in the USA, and the tornado brings very destruction. A much smaller but much more violent kind of cyclone. Cyclones mean jhakkad ya tufan. I told you what is cyclone. The moving in a round direction of wind is called cyclone. ये जो तूफ़ान आता है ये बहुत शदीद किस्म का होता है. इसको टोरंटो या हरिकेन बोलते हैं. These form over the sea and can only a few hundred of meter across, but wind speed are be as much of 400 to 600 किलोमीटर पर आवर. ये समंदर के ऊपर बनता है. ये झक्कर जो है और इसकी स्पीड जो होती है वो 400 से 600 किलोमीटर तक होती है. सम टाइम द suck up a vast amount of water from the sea to form a swirling column of water called a twister or water spout. क्या होता है कि ये पानी को चूस लेता है और समंदर से चूसता है और एक कॉलम बनाता है. एज यू कैन सी इन द अबव डायग्राम, एक कॉलम बनाता है पानी का हाई अबव इन द एयर लाइक दिस. swirling column of water called a twister or water spout, और जिसको twister और water spout बोलते हैं. The Toronto often moves from the sea to land. Toronto जो है वो समंदर से लैंड ज़मीन की तरफ मूव करता है. where it can do great damages, destroying houses and lifting cars into the air for distances of over a kilometer. जिसमें ये बहुत तबाही लेकर आता है, घरों की तबाही लेकर आता है और गाड़ियों वगैरह को धकेल देता है कई किलोमीटर दूर तक. इन पाकिस्तान a tornado is called an आंधी. पाकिस्तान में तूफ़ान को आंधी बोलते हैं. when it is our land, जब ये ज़मीन पे हो. एंड आ तूफ़ान अवर द सी. और अगर तूफ़ान में आएगा तो इसको अगर समंदर में आएगा तो उसको तूफ़ान बोलेंगे और अगर ज़मीन पे आएगा तो उसको आंधी बोलेंगे. यानी कि द विंड विच इज़ ब्लोइंग इन अ राउंड एंड राउंड इन स्पायरल, that is called, but its speed is very much violent. These are called the Toronto hurricane. They are made in water as well as they are made in land. Okay, now I am on the question answer. Question number 1 is work in all groups to collect and present information about cyclone in Southern Asia. You have to collect the information about cyclones. आपने cyclones की information लेनी है साउथ एशिया के बारे में जो कि चलते हैं साउथ एशिया में जो झक्कड़ चलते हैं. विच पार्ट्स वर मोस्ट इफेक्टेड बाय साइक्लोन्स, कौन से ऐसे हिस्से हैं जो कि साइक्लोन से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं. इन विच सीजन डू साइक्लोन मोस्टली अक्कर, कौन से ऐसे मौसम है जिसकी वजह से तूफ़ान जो है कौन से ऐसे मौसम है जिसकी वजह से तूफ़ान डू साइक्लोन मोस्टली अक्कर साइक्लोन मुतासर होते हैं. हाउ मेनी साइक्लोन्स हैव हिट साउथ एशिया इन द लास्ट 2 years, कौन से ऐसे कितने ऐसे साइक्लोन हैं जिन्होंने साउथ एशिया को हिट किया पिछले 2 सालों में. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द कंप्लीट दिस पैराग्राफ. दिस इज द पैराग्राफ विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड यू विल सॉल्व इट बाय रीडिंग दिस होल चैप्टर. दैट्स इट. थैंक यू फॉर लिसनिंग.